Hello dearly beloved, welcome to this Twin Flame Energy Check-in. We are here to find out what is happening in the collective. Masculines के साथ में क्या हो रहा है अभी, masculine के कैसी energies हैं. Hi Rubina, hi Mystic Brush. Hello, welcome. What's happening with the feminines? What do we need to know about their journey? What do we need to know about their journey? बॉटम द डेक एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटिव एनर्जी है. देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ वांटिंग टू कम फॉरवर्ड. ठीक है, तो ये एक पुल आपको फील हो रहा होगा आज अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के तरफ में. एंड दिस इज़ अ वेरी यूनानिमस फीलिंग. ठीक है, ये देखिए जैसे जो वज्र हैं ये सब आसपास हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को डाउट मत करें. आज हो सकता है आप का माइंड थोड़ा सा लाउड हो इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर पर्टिकुलरली, बट 8 ऑफ वॉन्ड्स कमिंग आउट इन द बॉटम ऑफ द डेक इज टेलिंग मी कि देयर फीलिंग्स आर म्यूचुअल. सो प्लीज ट्रस्ट द इनर फीलिंग, the heart expansion that you're feeling. Please trust it. Please allow all of these energies to come in because they are helping you, they are guiding you. Okay, so what is happening to masculines? Hi Mosam. Yes, you can just leave a DM, dear. I'm not doing any personal readings right now. This is a collective energy check-in. If you want to get a personal reading, you can reach out to me in my DM, or you can just WhatsApp me. Bottom of the deck, Phoenix, I have been getting this energy. Okay, we are at the precipice of a solstice. तो solstice energy जो है एक बहुत ही rejuvenating, transformative energy होती है, challenging भी होती है, it goes without saying. तो एक mini rebirth जैसा feel हो रहा होगा आपको अभी इस time, and this energy is helping you take back your own power, to take back your own sovereign rights. And it is here to empower you. Okay, fire activations bring creative and spiritual freedom. So there is a certain kind of activation that is taking place within you. जितना आप inner work कर रहे हैं अभी इस time, I'm feeling like you are just very easily you are leaving behind anything that is not aligned in highest form of truth and love. तो वो सब burn away हो रहा है through sacred fire, through your own tapas, right? So this is also a very powerful time for us to stay with the light. Okay, it's very easy to lose yourself in all of the doubts and all of the mind chatter, and when we see the dark aspects within ourselves, हम बहुत लो चले जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम वही हैं, मतलब. बट you have to hold the light as well in order to successfully complete your shadow work. You have to hold the light as well, knowing that you are this beautiful being of light, right? You are light incarnate, you are a conscious manifestation of light. So remember that, hold that, and through that you will be able to go through the biggest of storms, right? Thank you so much, Shiny. Okay, so where are the masculines at? Yes, Anything you drop, you put them? no, No, I mean the card. you can do your work. There are many activations taking place. I feel these energies, they are very very high vibrational energies, and I'm feeling that बहुत सारे activations हो रहे हैं अभी इस time. So take this time in your stride, make the most of it. अगर चैलेंज दिया जा रहा है तो उसके साथ में अप लेवल भी आएगा, राइट? ऑलवेज हैव दैट इन माइंड. I am also pulling out messages from your counterparts higher self today. I didn't feel so much for the 3D messages, but I felt like pulling out this deck. This is a very very beautiful deck. Okay,
So what is coming up for the masculines right now? For the masculines, I have the Wheel card, King of Wands, and the Six of Vajras. Okay, so Six of Wands. आई फील लाइक ये मैस्कुलिन को अभी तक जिन चीज़ों ने पकड़ के रखा था, पीछे खींच के रखा था, इस कनेक्शन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने में, अपनी फेमिनिन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने में, वो चीज़ें बहुत ही क्लियरली दिखाई जा रही हैं अब इस मैस्कुलिन को, राइट? विद दिस सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आई डू फील कि दे आर रियलाइजिंग मोस्ट ऑफ देयर ट्रैपिंग्स वर ऑफ देयर माइंड, ठीक है? तो उससे वो आगे लीप कर रहे हैं. दिस इज अ डांस दैट इज दैट बोथ ऑफ दीज मंक्स आर डूइंग. सो आई फील लाइक ये बैक एंड फोर्थ जो एनर्जी थी उससे खुद मैस्कुलिन थक रहे हैं, राइट? एंड दे आर गेटिंग सो टायर्ड कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं फेमिनिन की तरफ और फिर 2 कदम पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं फिर पीछे खींच रहे हैं. तो अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, मतलब आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू कम टुगेदर विथ माई डिवाइन फेमिनिन बिकॉज आई नो शी इज़ द वन फॉर मी. प्रॉबली ये मैस्कुलिन ने पहले रीडिंग्स कराई हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी चेक इन्स और चार्ट्स बनवा रखी हैं. हो सकता है कुछ टैरो रीडर्स के पास में जा रहे हैं ये मैस्कुलिन, ये पता करने के लिए कि भैया ये पर्सन है जो मेरा लगाव, जो मुझे महसूस हो रहा है इस पर्सन के साथ में, क्या वाकई वहाँ कुछ ग्रेविटी या कुछ सच्चाई है या सिर्फ केवल मैं अपने दिमाग में हूँ, राइट? बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट फॉरवर्ड. अब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना, अभी इस टाइम ये जो मैस्कुलिन इस जगह पे है अपने लाइफ में, उनको पता है अच्छा ठीक है, मुझे अगर ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि शी इज़ द पर्सन फॉर मी, देन आई कैन टेक स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन, राइट? कुछ सॉलिड एक्शन मैं लेना चाह रहा हूँ ताकि ये जो मेरी जो स्थिति है, मनस्थिति, उस पे एक अंकुश लगे, right? Because this I cannot go forward in this Six of Swords energy. I want to be better. I want to be better for me. I want to be better for us. And King of Wands की एनर्जी वही है, ready to take action. Okay? ये किंग जो है एक विजनरी है और बहुत बहुत सुंदर तरीके से जो बुधा हैं वो पद्म संभव हैं, ये जो अपने मेडिटेटिव पोज में हैं यहाँ पे. एंड ही इज़ अ किंग of not only his land but also of his own energies, of his life, of his decisions. Okay, so this is gaining maturity with regards to the direction of their life, right? So I do feel very strongly कि ये masculine आज अपने जो माइंड के जो डीमंस हैं उनसे लड़कर, उनसे जीत कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, टू ब्रिंग इन मोर पीस, टू ब्रिंग इन मोर नोइंग, टू ब्रिंग इन मोर joy and happiness to everyone around as well, right? Because they don't want to go on with this energy anymore. उनको पता है कि ये बहुत ड्रेनिंग, बहुत ही लो एनर्जी है जिससे वो अब बाहर निकलना चाह रहे हैं. कई सारे मैस्कुलिन्स जो हैं वो स्पिरिचुअल गाइडेंस सीख कर रहे हैं. दे मे बी रिकनेक्टिंग टू स्पिरिचुअल गुरुज, दे माइट बी रीडिंग स्क्रिप्चर्स, दे माइट बी लिसनिंग टू डिस्कोर्सेज और transformative sounds somehow I'm getting. Okay, this might be in the form of speeches, this may be in the form of certain frequency music that certain masculines are listening to, because that is making them feel like themselves. Like I feel like myself after a long period of time, and I like this, I like this, I like this person, you know. ये person हमेशा क्यों नहीं रह सकता मेरे साथ में, you know, when there is no mental chatter, when there is no craving, when there is no neediness, कोई anxiety नहीं है, और gaining responsibility of your own life, right? तो ये masculine जो है recognize कर रहे हैं कि in order to move forward, first they need to bring in a shift within themselves so that they can be in better balance within their own energies. And of course with the wheel card I'm getting कि ये masculine को there is a new season that this masculine is stepping into. Okay, this is a season of claiming back their authority, claiming back their power, claiming back their own life. Okay, अभी तक तो सब कुछ
हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग. बट अब मैस्कुलिन रिकग्नाइज कर रहा है कि थ्रू देयर ओन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दे आर सीइंग द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड, एंड दीज आर पॉजिटिव शिफ्ट्स, very powerful shifts taking place. And with the deer energy they are learning how to integrate their own inner feminine. अपनी inner feminine के साथ में जब वो काम कर रहे हैं, जब वो अपनी feelings को, जब वो अपने intuition को पूरे तरीके से accept करते हैं, तो वो अपनी inner feminine को embrace करते हैं. Trust, approach the situation with a light heart. Okay, and I'm seeing many deers here, so I'm getting के कुछ कोई feminine presence है इस masculine के आसपास. This may be in the form of a friend, okay, soul friend. This may be in the form of a mother. This may be in the form of a sister or a friend who is helping the masculine to heal his own inner feminine, right? So this is a beautiful energy coming across, and this, of course, this is his own divine feminine energy as well, that is helping the masculine to step into his own inner authority, his own role of masculinity, right? And apart from that, what else? Have vibration. Your vibration is being raised to higher levels. You are connected to cosmic intelligence. तो masculines जो हैं consciously time ले रहे हैं to connect with divine, okay, to establish that source with divine, so that they can have all of these clearings, so that they can see past all of this माया जाल. ठीक है, उनको समझ आ रहा है कि हाँ, जितना मैं अपने स्पिरिचुअलिटी में आऊँगा, जितना मैं अपने एसेंस में आऊँगा, उतना मेरा रोल जो है वो आसान हो रहा है, आसानी से जो है चीज़ें अपने आप सेटल इन हो रही हैं. सो दिस मैस्कुलिन इज़ रेजिंग देयर वाइब्रेशन लेवल्स थ्रू different ways. Okay, I'm feeling like this may be through meditation, this may be through just establishing their connection with divine and higher cosmic intelligence. Okay, inner worlds, your external world is a reflection of your own inner world, जो मैंने अभी कहा. Okay, ये masculine recognize कर रहा है कि in order to change the external reality, I need to be responsible and I need to be accountable for my own energy, for my own positivity that I hold within myself. Celebration. Celebrate your achievements. You are truly a gift to the universe, dear masculine. You are a visionary. You are an inspiration to everyone around you. Whether or not people might recognize you or not, but you definitely make a difference to people around. Okay, and don't let anyone tell you otherwise, because you know deep inside, you know that you were here for this. You were here to elevate the frequency of planet Earth and to assist planetary ascension at this point of time by just being your highest light and love, right? So you are a conscious manifestation of light. Please remember that and please stay with that, and you are already doing the work. I'm seeing that this masculine is trusting their own guidance. This masculine is learning to trust divine guidance as well. So they are seeing the changes around, and this masculine is also very very sure that उनके डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं वो उनका रोल क्या है उनके लाइफ में. और ये दिस इज़ वे पास्ट रोमांस एंड मिल्स एंड बून्स एंड घर घर जो खेलते हैं, उस तरीके की जो एनर्जी है उससे अब आगे बढ़ चुके हैं ये मैस्कुलिन. एंड ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं चाह रहे हैं, बट दिस मैस्कुलिन इज़ रिकग्नाइजिंग द ट्रू ग्रेविटी ऑफ वॉट दिस कनेक्शन इज़, कि ये हमसे इतना बड़ा है. ये असेंशन जो है वो इस कनेक्शन से भी बहुत बड़ा है. देयर इज़ अ ह्यूज मिशन दैट नीड्स टू बी कैरिड आउट थ्रू सोल वर्क. तो आई एम सीइंग दिस मैस्कुलिन पुटिंग इन द वर्क एंड दे आर इन अ बेटर हेड स्पेस फॉर श्योर. आई एम फीलिंग विद दिस 6 ऑफ डबल वज्रास, आई एम गेटिंग के ये मैस्कुलिन जो है अपने शैडो साइड के साथ में बहुत ही आसानी से काम कर रहे हैं, राइट? द सक्सेस ऑफ our union requires that both of us are capable of releasing our egos in order to act only out of unconditional love, right? Knowing that this connection is way beyond how we connect to each other, how we relate to each other. Our relationship with each other is a pure reflection of our relationship with God, divine source, love, light. ठीक है, तो ये मैस्कुलिन जो हैं आपके लिए, मैस्कुलिन का हायर सेल्फ जो है वो आपके लिए मैसेज लेकर आया है कि द सक्सेस ऑफ आवर यूनियन रिक्वायर्स दैट बोथ ऑफ अस आर केपेबल ऑफ रिलीजिंग आवर ईगोज इन ऑर्डर टू एक्ट ओनली आउट ऑफ अनकंडीशनल लव. ओके, तो कहाँ पे आप
नीडी हो रहे हैं, कहाँ पे आप डिपेंडेंट हो रहे हैं अपने काउंटर पार्ट पे, कहाँ पे आप अभी भी ऑब्सेसिव हैं, या कुछ चीज़ों को लेकर कुंठा है आपके मन में, या एनवी है, जेलसी है, या पेन है, हर्ट, एंगर है, या कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी आप ब्लेम कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट को. तो दोज आर द एरियाज वेर इन यू मस्ट बी पेइंग द attention, where you must be doing the inner work, because this journey is teaching us trusting in divine, and allowing the universe to do its thing, to play its part, right? This journey is teaching us about unconditional love. Okay, there are no conditions in love, and you just want your person to be happy. That's all that matters. We must first feel complete individually before we are able to feel complete together, राइट. तो इंटरनल बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पे. एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी फील हो रही है, एंड दैट इज़ व्हाट द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज़ ऑल अबाउट. ही इज़ अ मास्टर ऑफ हिज ओन एनर्जीज, राइट. एंड दिस इज़ बैलेंसिंग आवर ओन इडा एंड पिंगला एज वेल. ठीक है, इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने में हमें इस वक्त फोकस रखना है. या आपके डीएम के हायर सेल्फ जो है आप तक पहुंचा रहे हैं बात. और हो सकता है आप अगर अभी भी कभी कभार स्लिप कर जाते हैं, या आपके माइंड में जो है सैड थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, तो आप प्राणायाम कर सकते हैं. जस्ट सिट एंड डू दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर 1 or 5 minutes, एंड विद इन दैट यू विल एक्सपीरियंस कि आप टोटली शिफ्ट कर जाते हैं, आप बिल्कुल बैलेंस में आ जाते हैं, आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं अपनी एनर्जीज. क्योंकि यूजुअली हमारे थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं कि एक बार नेगेटिव थॉट शुरू हो जाता है तो आपका जो प्राणिक फ्लो है, आपका जो उस समय जो आपकी नाड़ी जो चलनी चाहिए, दिन में सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, रात में चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए. तो जब हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्टिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, तो हमारी जो नाड़ी है वो स्विच हो जाती है, राइट. विच गिव्स अस एंग्जाइटी, विच गिव्स अस नर्वसनेस. हम रूट चक्रा से इफेक्ट हो जाते हैं और घबराहट होने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता. उस वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप इतना समझ रहे हैं कि आप चेक करें अपनी नाड़ी, गलत नाड़ी चल रही होगी. अगर दिन में चंद्र नाड़ी चलेगी या रात में सूर्य नाड़ी चलेगी, तो देर इज एन ऑफ बैलेंस, एंड यू कैन क्विकली कम इनटू बैलेंस जस्ट बाय दिस स्मॉल एक्सरसाइज ऑफ प्राणायाम. या फिर आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं. इफ यू हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स by doing pranayam, you can do anulom vilom as well, but this is just something that is coming out, very handy, quick yogic tool that you can utilize. Just sit down on the ground with a mat and just do this exercise. Immediately you will call me and you will tell me, oh my gosh, this worked wonders for me. है ना. क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स फील करते हैं, फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ना सोचें इन सब चीज़ों के बारे में. और जितना हम भागते हैं उतनी वो वॉइस और लाउड होती जाती है, वो फीलिंग्स और एम्पलीफाई होते जाते हैं, तेज़ हो जाते हैं वो इमोशंस. तो ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है जो आपको शायद हेल्प कर सकती है आपकी एनर्जीज बैलेंस करने में. ओके, तो फेमिनिन के साथ में क्या हो रहा है अभी. फेमिनिन के लिए भी द वर्ल्ड कार्ड आया है. एक बहुत बड़ा चैप्टर आपने क्लोज किया है, बहुत पावरफुल एनर्जी है. अपने ऊपर नाज करिए, क्योंकि मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है अपने ऊपर, अपनी हीलिंग पे आपने बहुत ही शिद्दत से आपने काम किया है, अपना इनर वर्क, अपना शैडो वर्क. आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो दिख रहा है. वो स्पिरिट, आपकी जो गाइड्स हैं, आपकी जो टीम है, आपको बहुत 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 अपलॉड कर रही है. और एक बहुत बड़ा चैप्टर जो है अपनी हीलिंग की जर्नी पे वो आप क्लोज कर रहे हैं. सो फील प्राइड इन दैट. ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि अब ना है ना, अब यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल, अ न्यू सीजन with the world card coming in. Okay, and I have 7 of swords also coming out. ठीक है, तो 7 of swords is a card of deceit. It's also an energy of self sabotage. Yeah, so I'm feeling कि आप जो अपने thoughts में है ना, आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने आप को एक नेगेटिव नैरेटिव में आप स्लिप कर रहे हैं. यार ये सुन के रूहें उठ गई. ओह माय गॉश. तो
आप ना सोच के गलत नेगेटिव सोच में थोड़ा सा स्लिप हो रहे हैं और अपने आप को डाउट कर रहे हैं, अपने पर्सन को भी शायद आप डाउट कर रहे हैं। तो ये जो एक चेक्स जो हैं जैसे बन रहे हैं, मुझे उससे पता नहीं क्यों, जैसे हमारे स्कूल में मैथ्स की बुक हुआ करती थी, स्क्वायर्स बने रहते थे, वैसे से दिख रहे हैं। तो आप कैलकुलेशंस बना रहे हैं अपने दिमाग में, राइट, अभी के फ्यूचर को लेकर या पास्ट को लेकर के ऐसा 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 हुआ था तो उस वजह से ये चीज़ें हुई। तो मुझे अपने आप को शायद सेफ रखना है और मैं अब विश्वास नहीं करूँगी जब तक वो मुझे एक सॉलिड कमिटमेंट ना दें या अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का एक इंटरेस्ट जब तक नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं उनको सुनूंगी नहीं, मैं उनको चांस नहीं दूंगी, पहले उनको सॉरी बोलना होगा। ये सब जो एनर्जीज जो है ना, ये हमें लो वाइब्रेशन में खींचती हैं, क्योंकि ये सब कंडीशंस हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सारी कंडीशंस हैं जो आप अपने पर्सन पे थोप रहे हैं, राइट। और ये क्या करता है, ये उनको दूर रखता है, राइट, क्योंकि यू आर नॉट वाइब्रेटिंग इन द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट लव। हाईएस्ट लव क्या है, रिलैक्स करना जानता है, चीज़ें मुट्ठी खोल के प्रेम करना जानता है कि ठीक है, आप अगर आ रहे हैं तो मेरे पास दुनिया का सारा प्रेम है आपको देने के लिए, पर अगर आप जाना चाहते हैं तो तभी ये प्रेम तो कम होने वाला है नहीं, राइट। तो ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है, राइट। और एट दिस पॉइंट वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ आर थॉट्स आर कीपिंग अस फ्रॉम यूनियन। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो एक सेल्फ साबोटाज करने के, कहीं ना कहीं फिर आप नेगेटिव थॉट्स सोच के फिर आप लो एनर्जी में चले जाते हैं, ये फील करने लगते हैं कि मैं शायद डिज़र्व नहीं करती है कनेक्शन, मैं यूनियन डिज़र्व नहीं करती, मैं मेरे पर्सन को डिज़र्व नहीं करती, वो तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं अपने माइंड में, अपने हृदय में, आप अपने पर्सन को लेकर कैसी भावनाएं रख रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ ब्रिंगिंग इन द शिफ्ट। आप शिफ्ट करते हैं तो आपके पर्सन भी शिफ्ट करेंगे, राइट। जब आप डाउट करते हैं, जब आप क्वेश्चन करते हैं, तो आपके पर्सन भी डाउट करने लगते हैं इस कनेक्शन पे, पर क्या हम वो चाहते हैं, नहीं, हम वो नहीं चाहते। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर थॉट्स रेगुलेटेड, एंड इट्स ओके, नेगेटिव थॉट्स आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, हर किसी को आता है, मुझे भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, राइट। बट उस वक्त टू रिकग्नाइज, उस समय इतना अवेयर रहें, इतना कॉन्शियस रहें कि हाँ, ये नेगेटिव थॉट है जिसको मुझे जड़ से निकालना है, क्योंकि ये मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, इस जर्नी पे मुझे ये हेल्प नहीं करेगा, राइट। तो उसको निकालना ज़रूरी है, रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव थॉट। पेज ऑफ वांड्स आ रहा है, ठीक है। तो एक कोई नया इंटरेस्ट है फेमिनिन्स को, नया इंटरेस्ट मिला है, नई हॉबी है, नया शौक है, एक आर्टिस्टिक एंडेवर है जो शायद वो टेकअप करना चाह रही हैं, जो आपको फील हो रहा होगा कि आप करना चाह रहे हो, बहुत टाइम से परस्यू करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपका म्यूजिकल पैशन हो सकता है, सिंगिंग हो, डांस हो, या आर्ट भी हो सकता है, बट दिस इज समथिंग न्यू, दिस मे बी स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ, लाइक यू आर फीलिंग about embarking upon this new journey of discovering your passion. So please do that, because that is going to help you quick into your to come into your energies very quickly, okay। और बहुत effortless progression होगा, मुझे ऐसा feel हो रहा है। I feel this upcoming full moon is going to be significant for us. It is like every moment is very very significant, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमको wisdom दी जा रही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम वो lesson अपने अंदर उतारते हैं कि नहीं, हम वो observation करते हैं कि नहीं। अगर हम अपने दिमाग में बैठे रहेंगे, फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो सामने यूनिवर्स जो हमको साइंस भेज रही है वो हम नहीं समझ पाते, उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे, उस साइन को, उस सिंक्रोनिसिटी को हम नहीं समझ पाएंगे, राइट, क्योंकि हम अपने ही अंदर बिजी हैं, राइट। बट ऑल द टाइम दिस यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू अनलॉक योर डिवाइन विजडम टू help you come back to presence again and again. It's like, yes, reminding yourself again and again, I am a being of light here, I have come here for a greater purpose, this purpose is much greater than my own needs and desires, right? I'm here to show up in the world so that I can help and assist and serve. See your adversaries as opportunities to expand your spiritual light. तो हो सकता है कोई competition की energy हो आपके आसपास, dear feminine, ठीक है। हो सकता है ये आप ही के काउंटर पार्ट से आपको फील हो रही हो एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी। इट कैन बी हेल्दी कॉम्पिटिशन एज वेल, बट समटाइम्स वी डू फील कि हमारे यार वो तो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं, दे आर बीइंग सक्सेसफुल एंड दे आर गेटिंग द रिकग्निशन दैट दे वांट, दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ, दे आर जस्ट लाइक ड्रेस्ड अप वेरी ब्यूटिफुली एंड they seem to be happy
एंड दे सीम टू हैव इट ऑल अंडर कंट्रोल. तो भाई मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ बट मुझे वो सब रिजल्ट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे. तो वो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है जो कॉम्पिटिटिवनेस बाहर लेकर आ रही है शायद आप में, राइट. तो उस टाइम में कम बैक टू योर हार्ट सेंटर अगेन, अंडरस्टैंड कि वो आपको दिखा रहे हैं कि आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं. अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट सक्सेस को एम्बॉडी कर रहे हैं, अचीवमेंट को एम्बॉडी कर रहे हैं, तो वो आपको दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए भी पॉसिबल है, राइट. बट कहाँ पे हमें वो वर्क डालना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. हमें कहाँ पे मेहनत करनी है, कहाँ पे हम बैठे हुए हैं, कहाँ पे हमें शायद उनकी स्किल्स और कैपेसिटीज़ अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, राइट. तो ये एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है जो हो सकता है आपको अपने काउंटर पार्ट से मिल रही हो सकता है अपने आसपास के लोगों से फील हो रहा हो. थोड़ा सा अंदर ऐसा लगता है कि यार हाँ दे आर डूइंग सो गुड फॉर देमसेल्व्स, बट उस टाइम नो कि जो एनर्जी जेलसी की जो एनर्जी है जो हमें कॉम्पिटिटिवनेस फील कराती है, जेलसी इज़ अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ एडमिरेशन. जेलसी क्यों है, क्योंकि आप एडमायर कर रहे हो अगले इंसान को, आपको अच्छा लग रहा है अगले को देखकर. बट वो जेलसी में कब कन्वर्ट होता है, एडमिरेशन, जब हमें ऐसा लगता है यार हम अपने आप को नीचा कर देते हैं. नहीं, ऊपर नीचे कोई नहीं है, भगवान की नज़रों में सब एक समान है. उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसको उन्होंने ग्रैब किया, जिस पे उन्होंने वर्क करना शुरू किया, और उनके अपने कर्म हैं जो वो भोग रहे हैं, राइट. और ऐसा नहीं है कि आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट हाँ ये जो फीलिंग ऑफ जेलसी है वो आपको कुछ बता रही है अपने बारे में, राइट. तो कम इन टू योर ओन पॉजिटिव एनर्जीज, bless them with more success in life, and say that I am also successful and I'm blessing this person with more success, right. बर्थडे नंबर्स का क्या मीनिंग है ट्विंस के साथ में. येस, सो सन मून असेंशन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा. और ये क्वेश्चन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एक और जने ने आज पूछा कि मैं अपनी आईडी में मैंने जो नंबर लिखा है वो 1222 क्यों लिखा है. वो इसीलिए क्योंकि ये नंबर मुझे बहुत दिखता था बहुत बार, स्पेशली ऑन द क्लॉक. एंड आपको पता है कि क्लॉक में एक डिवीजन आ जाता है जो सेमी कोलन का, तो 1-2 सेमी कोलन 2-2 नज़र आता था मुझे बहुत बार, जो पहले समझ में नहीं आता था. एंजल नंबर्स मैंने पढ़े बट उससे भी पता नहीं इंटरनली मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता था, समझ नहीं आता था कि क्यों एग्जैक्टली ये नंबर ही क्यों इतनी बार दिखाई दे रहा है. Then at a point in my journey I recognized that these are both the birth dates of both divine counterparts, right. तो ये आपको अगर दिख रहा है, अगर आपको बार बार दिखाया जा रहा है, तो this is universe's way of reaching out and letting you know that you both share a mission. Both of you share a soul mission, that it is a spiritual mission. It is greater than coming into physical union with each other, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पे काम कर रहे हैं प्लस अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, right. And why are you doing this? This is not just to end up getting married to one person. Yes, it's a big part of it, but that is not the only part. ठीक है, हो गया फिजिकल यूनियन, हो गया शादी हो गई, अब क्या नाउ व्हाट, राइट. तो उसके बाद में जो आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने सोल ट्राइब के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगर आप सर्विस करना या आप हेल्प करना शुरू करते हैं, तो यू स्टार्ट स्टेपिंग इनटू योर ओन सोल मिशन अलॉन्ग विथ योर डिवाइन काउंटरपार्ट. तो अगर आपको बर्थडेज एक दूसरे के साथ में नज़र आ रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है कि आप दोनों ये सोल मिशन पे एक साथ हैं. आपको फील हो रहा होगा, शायद नोटिस करिएगा कि आपको शायद अकेलापन फील हो रहा होगा, तब आपको ये नंबर ज़्यादा दिखता होगा. तो ये यूनिवर्स का तरीका है आपको याद दिलाने के लिए कि आप दोनों साथ ही हैं, राइट. यू बोथ ऑफ योर लाइव्स आर गोइंग ऑन पैरेलली. ओके, सो फेमिनिन के लिए लास्ट कार्ड आ रहा है ट्रांसेंडेंस. ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन. अगेन माइंड आ रहा है बार बार, माइंड चैटर ज़्यादा बढ़ रहा है. प्लीज स्टे अवेयर ऑफ योर थॉट्स. ठीक है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ थॉट्स, नेगेटिव थॉट है या पॉजिटिव थॉट है. तो आप जितना
जितना आप अल्कमाइज कर पाते हैं अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में चेंज जितना जल्दी आप कर पाते हैं, उतना आपकी एनर्जी जो है एलिवेटेड रहती है, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, आप लो में नहीं जाते। नहीं तो हम बार बार लो में इसीलिए सरक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचने लगते हैं, मतलब माइंड जब चलने लगता है, चार्टर करने लगता है, समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, मतलब आपकी नाड़ी गलत चल रही है। ठीक है, हो सकता है आप चेक करिएगा, अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है मतलब कि चंद्र नाड़ी चालू है। दिन में चंद्र नाड़ी चढ़ना मतलब ये सब ये सब मचता है, राइट। सो जस्ट कम इनटू बैलेंस एंड नो कि आप अपने माइंड से ऊपरे हैं। ठीक है, यू आर नॉट योर थॉट्स, आप अपने थॉट्स नहीं हैं। आपके थॉट्स जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप फियर इल्यूजन में आ रहे हैं, डाउट में स्लिप कर रहे हैं, तो आपको अपने हार्ट में उतरने की ज़रूरत है। एंड नो दैट यू नीड टू अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। यू आर हियर फॉर अ ब्यूटिफुल पर्पस। मतलब मैं बता नहीं सकती कितना बड़ा पर्पस है आपका यहाँ पे। आप यहाँ पे हो, अभी सांस ले रहे हो, वो ही इतना अपने आप में इतना बड़ा पर्पस है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स को आपका सपोर्ट मिल रहा है, राइट। आपको नहीं पता आप कैसे हेल्प कर रहे हो, पर आप हेल्प कर रहे हो, राइट। सो एंड कीप ऑन डूइंग द वर्क, यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग। आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। अगर आप अपने इनर वर्क पे काम कर रहे हैं, अपना शैडो वर्क कर रहे हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत एक फिनोमिनल लेवल पे अपलिफ्ट कर रहे हैं पूरी ह्यूमैनिटी को, नॉट जस्ट इन वन पर्सन। अब डाउट कम है, आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, दोनों चल रहा है। येस, सो इट्स ऑल हैपनिंग, ओके, सो अलाउ इट, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी स्टार्ट स्टेइंग अवेयर of the nature of our thought, then it becomes easier and easier and easier. कुछ दिन ज़्यादा भारी होते हैं, एनर्जीज हैवी होंगी, जैसे लास्ट 2-3 डेज काफ़ी हैवी थे एनर्जेटिकली। बॉडी पेन आपको फील हो रहा होगा, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, इमोशंस ऊपर आ रहे होंगे। सो नो दैट इट्स अ हैवी डे, बट दिस इज नॉट द रियलिटी ऑफ द कनेक्शन। ठीक है, यू डोंट नीड टू असाइन अ मीनिंग टू दैट. Literally, as I reflected back to my past and my childhood, I realized how universe destined every single change in my life because I'm on this earth for a big purpose. Truly, truly, truly. रूबीना कह रही है दोनों नाड़ी चल रही हैं दी, तो दोनों नाड़ी जब चल रही होती हैं तो आप केवल फर्श पे पंगत लगा के बैठ जाएं। ठीक है, उसमें आप जब ध्यान मुद्रा में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके जो थॉट्स हैं वो धीरे 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 जो हैं धीरे करके दे विल स्टार्ट न्यूट्रलाइजिंग एंड इट विल हैपन ऑल वेरी एफर्टलेसली, बहुत आसानी से हो जाता है. I trigger your wounds for the purpose of healing. It is your responsibility to heal these wounds. ये feminine का higher self आज masculine को बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ है जिसके लिए आपको trigger मिला है मेरे through, तो it is your responsibility to heal yourself. Okay, these wounds are here for a purpose so that we can start vibrating higher. You need to trust your higher self. Our higher selves know exactly what situation and experiences will bring us back into union. तो हो सकता है थोड़ा masculines का आज थोड़ा ट्रस्ट डगमगा रहा हो, या आपका ट्रस्ट हो सकता है थोड़ा सा डगमगा रहा है अपने पर्सन पे, अपने कनेक्शन से, तो इस वजह से ये सब ऊपर आ रहा है. तो आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट योर हायर सेल्फ. आप दोनों के हायर सेल्फ ने जो ये सब जो भी कुछ हो रहा है अभी आपके आसपास, आपकी जर्नी पे जो भी कुछ हो रहा है, आपने और आपके पर्सन के दोनों के हायर सेल्फ ने ये डिसाइड किया हुआ है अभी इस टाइम कि वी विल स्टे अपार्ट सो दैट वी कैन वर्क ऑन आवर सेल्व्स, सो दैट वी कैन वर्क ऑन आवर ओन हीलिंग इन पीस. क्योंकि हम जब साथ में आते हैं तो अलग तरीके की अलग तरीके की हीलिंग होती है, वो अलग लेवल की होती है, राइट. तो अभी अगर हम अपने ऊपर काम करें तो हम एक दूसरे के दुश्मन उस तरीके से एक दूसरे पे हावी नहीं होंगे, राइट. तो हम जितना अभी सेपरेशन जो अभी देख रहे हैं वो इसीलिए है ताकि हम अपने ऊपर फोकस रखें, राइट. और आपके हायर सेल्फ को पता है ऑलरेडी कि आपको क्या चाहिए इस वक्त, राइट. तो इट इज़ ऑल हैपनिंग ब्यूटिफुली, जस्ट ट्रस्ट दैट. जिराफ, सी द बिगर पिक्चर. ठीक है, सी दिस जर्नी टू बी बिगर देन योर्स. अभी आप यही कह रहे हो हाय मेरी जर्नी, हाय मेरा दिल, हाय मेरा प्रेम, हाय मेरा फ्यूचर, मैं. तो आप मैं से जब बाहर निकलते हैं तो आप सबका सोचना शुरू करते हैं. जब आप सबका सोचना शुरू करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ अगलों के लिए,
व्हाट एम आई डूइंग, मैं तो केवल ले रही हूँ, ठीक है. बट हमारा काम यहाँ लेना नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं देने के लिए, प्रेम देने के लिए, विजडम देने के लिए, राइट, अपना प्रेजेंस और एनर्जी देने के लिए. So see the bigger picture, take a step back and gather your thoughts and feelings so that you can rise up in your situation. Ears ringing a lot. Like I mentioned, dear Shiny, we are receiving lots of downloads, lots of activations. Have lots of water, and your spiritual team might be communicating with you. That is why you're getting a lot of ear chakra activations. Also, your sensitivity is increasing. So please make sure you're listening to please make sure you're mindful of what you're listening to. One thing, ki his life and my life in certain years was also same. When I asked him, he told me, yes, twin flames lead parallel lives. That happens a lot. Also, exact same year पे काफ़ी हमारी लाइफ मिरर की है before we met. Yes, that's also true. That's true. अब उसने ट्रिगर किया तो I realize कि मैं कर रही थी खुद को नहीं. But I realized his sufferings as well. Yes. Holding space. When you hold space for your divine counterpart, जब आप समझना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने आप को अपने मैस्कुलिन के शूज़ में रखते हैं, तब आपका हार्ट एक्सपेंशन होता है, क्योंकि you want to see their side of things. Okay, that time you are truly understanding what they are going through. ठीक है. And when you do that, your heart goes through an immense expansion. It's like, oh my gosh, then you start feeling their feelings, right? Like that's the depth of what they meant. क्योंकि जब ट्रिगर्ड होते हैं तो हमको जो वर्ड्स और जो एनर्जीज होती हैं वो समझ में नहीं आती हैं. उस टाइम ईगो का वेल होता है. जब वो ईगो का वेल ड्रॉप करता है तब आपको यूनिटी दिखाई देती है, तब आपको नॉन ड्यूअलिटी समझ में आती है कि सेपरेशन जो था वो तो केवल दिखावा था, राइट. हम दोनों एक ही हैं और हम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि एक दूसरे में क्या एक्टिवेट करने की ज़रूरत है. Like randomly thinking of him and a notification popped up कि love him a lot, only boy for you. yes. So universe guiding us always. Okay, so journey के लिए क्या आ रहा है? journey के लिए आ रहा है Queen of Swords and 5 of Swords. So this week I'm feeling very ऐसे homework वाली feeling आ रही है मुझे कि इस हफ्ते जो है अपने thoughts को केवल observe करें. Just observe your thoughts. You don't need to do anything. You don't even need to sit and meditate. Okay, this is what I'm getting. ठीक है, कि आप जब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने माइंड को कॉन्शियसली वॉच कर रहे हैं. क्योंकि आप अपने थॉट्स को देख रहे हैं तो ऐसा कुछ है जो आपके थॉट्स को वॉच कर रहे हैं. तो मतलब कि यही है कि आप अपने थॉट्स नहीं हो, क्योंकि आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो. So you are not your thoughts, you are the awareness behind your thoughts. And when you start being more mindful of your headspace, that is when you start changing the whole picture. I cannot even stress on this. मतलब ठीक है आप एनर्जी वर्क कर रहे हैं, क्रिया योग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, but when you start understanding the nature of how your mind works, how it can go against you and how it can work for you, that is the true claim of power that you have. You have intense intellectual capacities, right? But most of the time हमने वो जो तीक्ष्णता है, जो एक रेजर शार्प नाइफ है जो आपका माइंड है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने उल्टा पकड़ रखा होता है. इसीलिए हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, राइट. बट लर्न हाउ टू वर्क विद योर ओन माइंड, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है. सो दिस इज being more aware of your thoughts. Queen is all about internalized energy, right? So internal mastery अभी इस टाइम दोनों divine counterparts gain कर रहे हैं अपनी mental state पे. और 5 of Swords is again competition. I feel like nobody is your competition. You are your own worst enemy. Your mind is your own worst enemy. Your mind can either be your best friend or it can be your worst enemy. Now you decide what you want that to be, right? Blue star. Follow the light of your own inner compass, the blue star. It will lead you to the truth that resides within your soul. Beautiful. तो आपके जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितने भी नॉलेज है, विजडम है, वो ऑलरेडी प्लेस्ड है. डिवाइन ने ऑलरेडी प्लेस करके भेजी आपके अंदर.
with time we are trying to unravel all of that treasure. Strength, you are being guided by the cosmos. Stay strong, a positive outcome is assured. ठीक है, तो ये सिचुएशन का आउटकम जो है पॉजिटिव होने वाला है. बी स्ट्रॉन्ग, बी फर्म इन योर नोइंग, बी हैव करेज. 444, गेट स्टेबलाइज्ड इन योर मेंटल एनर्जीज एंड इन योर इमोशनल एनर्जीज एंड you know you are going to be unstoppable, right? So if there is anything that is limiting you, it is you yourself. Nothing else has the power to limit you. Okay, I hope this reading resonated with you. If it did, kindly let me know in the comments down below. If you want to book a personal reading, please feel free to reach out in my DMs. Take care, stay blessed. I love you.